পশ্চিম এশিয়ায় যেভাবে যুদ্ধ চলছে তার বলি এবার শৈশব, রেহাই নেই শিশু কিশোরদেরও। ইরানের গার্লস স্কুলে যেভাবে হামলা চালানো হয়েছিল ইসরায়েল আমেরিকার যৌথ বাহিনীর এই হামলায় 170 জনের মৃত্যু হয়েছে, অর্থাৎ ছাত্রী ও শিক্ষক মিলিয়ে 170 জনের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছেন ইরানের শিক্ষামন্ত্রী। তাদের গণকবর দেওয়া হয়েছে, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। 28শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ইরানের মিনাবের স্কুলে ইসরায়েলি হামলা, দেওয়া হলো গণকবর। চোখের জলে শেষ বিদায় খুদে পড়ুয়াদের। যৌথ বাহিনীর হামলায় ইরানের অন্তত 20টি স্কুলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মানবতার উপর এমন হামলা বিরল, প্রতিক্রিয়া ইরানের শিক্ষামন্ত্রীর। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির নীরবতা নিয়েও সরব ইরান। ভয়ঙ্কর হামলার পরও ইরানিদের মনোবল ভাঙেনি, মন্তব্য ইরানের শিক্ষামন্ত্রীর। একটি গার্লস স্কুলে হামলার খবর স্বীকার আমেরিকার। That this attack that hit the girls' school was absolutely devastating. I mean, children, little girls, in the middle of the school day, at the beginning of the school day, being killed in this manner, backpacks with, blood stains on them. This is absolutely horrific. And I think if there's any image that captures the essence of the destruction, despair, and senselessness and cruelty of this conflict, those are the images. International humanitarian law spells out that any attack must comply with the principles of distinction, proportionality, and precaution to protect civilians. If attacks are found to be directed against civilians or civilian objects or indiscriminate attacks, they are serious violations of international humanitarian law and may amount to war crime. আর ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালী, যে হরমুজ প্রণালী তেল পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম, সেই হরমুজ প্রণালী এবং সেখানে 10টি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে হরমুজ প্রণালীতে ঢোকার জের এবং 10টিরও বেশি তেলবাহী জাহাজে হামলা চলেছে। Trading sources have told Reuters that several tanker ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो वहां से शिप गुजर रहे हैं उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से ईरान अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है, उन तमाम देशों के माध्यम से जिनके ऊपर एनर्जी का असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक बड़ा संकट आ सकता है दुनिया भर के कई देशों के सामने। जो कच्चे तेलों का सप्लाई का सबसे बड़ा रूट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसीलिए ईरान यहां पर लगातार हमले कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, ईरान की तरफ से जो हमले इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं उसमें उसको ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। ईरान को सफलता पश्चिम एशिया के देशों पर हमला करने में मिल पा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप पर हमला करने में उसको सफलता मिल पा रही है। तो इसीलिए ईरान अब अपने आसपास के इलाकों पर ज्यादा हमले की कोशिश कर रहा है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या फिर जहां पर इजराइल के बहुत सारी चीजें स्टेक पर लगी हुई है। तो इसीलिए ईरान अब यहां पर कई शिप को लगातार टारगेट कर रहा है। देखना यही होगा कि इसका विकल्प क्या निकलता है, क्योंकि अगर ये बहुत लंबा चला चंदन तो इस जो असर है वो बहुत सारे देशों पर पड़ेंगे, आम लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ ঢোকায় 10টিরও বেশি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে লেবাননে ফের এয়ার স্ট্রাইক ইসরায়েলের। হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করে আকাশপথে ড্রোন হামলা এয়ারফোর্সের। হিজবুল্লাহর অন্তত 250 আস্তানা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, এরকমই তেল আবিবের তরফে দাবি। বিশেষ প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि ईरान के फाइटर जेट को मार गिराया है और इजराइल बड़े पैमाने पर लगातार ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान पश्चिम एशिया के देशों में लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त एक नया आंकड़ा सामने आया है, संयुक्त अरब अमीरात यानी जो दुबई अबू धाबी का एरिया है वहां पर आज ईरान की तरफ से 129 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से 121 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया और 8 ड्रोन यूएई में गिरे हैं। इस बात की पुष्टि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने की है। इसके अलावा 3 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर हमले की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है, जो कि असफल रहा है। यह कहा जा सकता है कि ईरान इजराइल पर हमले करने में विफल है, लेकिन पश्चिम एशिया के देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने में काफी हद तक सफल हो रहा है। और इन सब के बीच में इजराइल की वायुसेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। उनके तमाम जो ईरान के फोर्सेस हैं उनको खत्म करने में जुटी हुई है और एक ही मकसद है मेघा इन हमलों का। अमेरिका और इजराइल के पास ये आखिरी मौका है ईरान में तख्ता पलट करने का, रिजीम चेंज करने का। अमेरिका इजराइल की पहली कोशिश यही है कि ईरान जहां से ड्रोन हमले लॉन्च कर रहा है, जहां से मिसाइल हमले लॉन्च कर रहा है, उन जगहों को ही खत्म किया जा सके ताकि ईरान की ताकत को कम
करें और ईरान में तख्तापलट के रास्ते पर अमेरिका आगे बढ़ पाए। लेकिन ईरान ने इतनी जगह से मिसाइलें लॉन्च कर रहा है कि 28 फरवरी से अब तक पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए हैं। वो आज भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर पहले ही इजरायली वायुसेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। वहां की बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमला किया है, जो कि प्रदर्शनकारियों को हमने देखा था पिछले दिनों में किस तरह से उनके साथ सलूक किया था, उनको बुरी तरह से मारा पीटा था बसीज फोर्स ने। उनके ठिकानों पर भी हमला किया है, जो कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो अमेरिका और इजराइल हर उस इलाके पर हमला कर रहे हैं जिससे उनका रास्ता साफ हो सके, ईरान में वो तख्ता पलट कर सके। और लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।